بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راحیل اپنی بیوی کے روز روز کے تانوں سے بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد سے اس نے اور محنت شروع کر دی تھی۔ صبح منہ اندھیرے نکلتا اور رات کو گھر لوٹتا۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود وہ اتنے کم پیسے کما پاتا جس میں عطیہ کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوتا۔ عطیہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کے 3 اپنے سے چھوٹے بہن بھائی بھی سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ باپ رکشہ چلاتا تھا۔ عطیہ کو شروع سے ہی امیر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کی منگنی بچپن سے ہی اپنی خالہ کے بیٹے سے طے پا چکی تھی۔ خالہ کے گھر میں ایک خالہ اور اس کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ خالو وفات پا چکے تھے۔ خالہ ایک فیکٹری میں کام کر کے بچوں کو بمشکل پال رہی تھی۔ خالہ کی بیٹی کی منگنی عطیہ کے چھوٹے بھائی سے ہو چکی تھی۔ جب راحیل جوان ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر کام کاج ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آخر ایک گاڑیوں کے ورک شاپ میں ملازمت مل گئی۔ اس نے سوچا ادھر کام سیکھ کر وہ اپنی ورک شاپ کھول لے گا۔ عطیہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ انتہائی غربت کے باوجود ایم اے کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ راحیل اسے بچپن سے بہت پسند کرتا تھا۔ آج راحیل جلیبی اور عطیہ کے لیے تازہ پھولوں کے گجرے لے کر آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو عطیہ کی ماں اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ وہ اسے بہت پیار کرتی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کے نخروں کا برا نہیں مناتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے ملا اور خالہ کو جلیبی دیتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ اس نے اپنا گاڑیوں کا گیراج کھول لیا ہے۔ اب جو کمائے گا اپنے پاس ہی ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اب اس کام میں مہارت بھی حاصل کر چکا ہے۔ خالو بھی آ کر گلے لگا کر مبارکباد دینے لگے۔ خالہ نے بہت مبارکباد دی اور ڈھیروں بلائیں لیں۔ اس نے خالہ کو جلیبی والا لفافہ پکڑاتے ہوئے کہا، خالہ یہ لے، اسی خوشی میں منہ میٹھا کرے۔ خالہ نے زور زور سے عطیہ کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ عطیہ اندر آئی تو راحیل کو دیکھ کر منہ بنا لیا۔ وہ پھر بھی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ خالہ نے جلیبی والے لفافے میں گجرے والا لفافہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ عطیہ کے لیے ہی لایا ہے۔ وہ اکثر اس کے لیے چھوٹے موٹے گفٹ لاتا رہتا تھا۔ عطیہ نخرے دکھا کر لے لیتی کیونکہ اس غربت میں وہ گفٹ بھی اسے غنیمت لگتے تھے۔ کالج پہن کر جاتی۔ ماں نے کہا عطیہ آج اس نے اپنا گاڑیوں کو ٹھیک کرنے کا گیراج کھول لیا ہے، اسی خوشی میں یہ جلیبی لایا ہے اور یہ تیرے لیے گجرے۔ چل جا شاباش، اب اچھی سی چائے بنا کر لا اور یہ 100 کا نوٹ پکڑ، بھائی سے کہہ کر سموسے بھی منگوا لے۔ وہ اکڑ سے بولی، اماں میں پڑھنے جا رہی ہوں، تو چھوٹی سے کہہ دینا بنا لے چائے اور مجھے بھی دے جانا، جلیبی اور سموسے کے ساتھ۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا تو راحیل نے منع کرتے ہوئے کہا، خالہ سچ ہی تو کہتی ہے نا، اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، میں خود جا کر سموسے لے آتا ہوں، تو چائے بنوا کر رکھ۔ خالہ نے آواز دی، یہ پیسے تو لیتا جا۔ وہ بولا، رہنے دے خالہ، میں لے آتا ہوں۔ عطیہ نے گجروں کا لفافہ کھولا تو سامنے بہت خوبصورت گجرے اس میں پڑے تھے۔ چھوٹی بہن نے جھٹ کہا، واو باجی، کتنے خوبصورت گجرے ہیں۔ عطیہ کو بھی بہت پسند آئے، مگر وہ نقلی پھولوں سے بنے ہوئے تھے اور اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ عطیہ نے بے اختیار پہن لیے اور اتارنے یاد نہ رہے۔ پہن کر بک کھول کر پڑھنے لگی۔ راحیل آیا تو اس کے بازوؤں میں گجرے پہنے دیکھ کر خوشی سے مسکرا کر بولا، پسند آئے ہیں نا؟ مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ غرور سے اتارتے ہوئے بولی، سونے کے کنگن لاؤ گے تو خوش ہوں گی، مجھے یہ نقلی زیورات کا کوئی شوق نہیں۔ اور گجرے میز پر پٹخ دیے۔ راحیل کے چہرے پر ایک دکھ کا سایہ سا لہرا گیا۔ ماں نے عطیہ کو گھور کر دیکھا۔ عطیہ پڑھائی سے فارغ ہو چکی تھی اور راحیل کی بہن بھی جوان تھی، اور اب دونوں خاندان ان کی جلد شادی کروا کر اپنے فرائض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ راحیل کی بہن عطیہ کے بھائی سے منگنی ہونے پر بہت خوش تھی، جبکہ عطیہ راحیل سے شادی کرنے سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ راحیل اس کے انکار کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، بس وہ ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کا ساتھ مانگتا رہتا تھا، حتیٰ دن رات اس کا نام لے لے کر دعائیں بھی کرتا رہتا۔ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی دعائیں ضرور سنے گا۔ عطیہ کے مسلسل انکار پر ماں نے اسے کوستے ہوئے کہا، کون سا شہزادہ تجھے بہنے آئے گا؟
झोंपड़ियों में रहकर महलों के ख्वाब देखना छोड़ दे। महलों वाले महलों वालों से ही रिश्ता जोड़ते हैं। वो दुख भरे लहजे में बोली। माँ, क्या गरीब लड़की को महलों के ख्वाब देखने पर भी पाबंदी है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ। कॉलेज में लड़कियां मेरे हुस्न की तारीफें करते नहीं थकती हैं, मगर किसी अमीर की, किसी जौहरी की नजर इस हीरे पर क्यों नहीं पड़ती? वो रोने लगी। माँ ने तड़प कर उसे प्यार से गले लगाकर कहा, मेरी प्यारी बेटी, देख, अल्लाह ताला किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। अगर उसने हमें दुनिया में गरीब पैदा किया है तो गरीब क़यामत वाले दिन, अब मुझे इतना सही मालूम नहीं, मगर इतना सुना है कि वो अमीरों से कई हजार साल पहले जन्नत में जाएंगे। अगर कोई गरीब अपनी गुर्बत में भी सब्र करता है तो उससे गुर्बत को भी अल्लाह ताला की रजा के लिए हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेता है, तो इससे आखिरत में उतना अजर सवाब मिलेगा कि इस सवाब का अगर इंसान को अंदाजा हो जाए तो वो सोचे कि काश वो सारी जिंदगी सब्र ही से गुजार देता। इसलिए अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे उसमें हमारी बेहतरी है। देख, अमीर रिश्ते की आस में इतने सुलझे हुए और तुझ पर जान निछावर करने वाले इंसान से ना हाथ धो बैठो। राहिल तुझे दुनिया की मादी दौलत तो नहीं दे सकता, मगर मोहब्बत और इज्जत की दौलत जरूर दे सकता है। एक औरत को अगर ये दोनों चीजें शौहर से मिल जाएं तो वो अपने आप को दुनिया की अमीर तरीन और खुशकिस्मत तरीन औरत समझती है। इस जैसी दौलत के आगे दुनिया की मादी दौलत कोई मुकाबला नहीं कर सकती। वो तंजिया बोली, अम्मा, हम गरीबों के लिए दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। माँ ने कहा, तू कॉलेज में पढ़ती रही, कितनी तेरी सहेलियां बनी, तू इनके घरों में फंक्शंस पर भी जाती रही। क्या आज तक तुझे किसी ने पसंद करके रिश्ता भेजा? नहीं ना। एक सहेली का कजन तुझे पसंद करके रिश्ता भेजना चाहता था। जब उसे पता चला कि तेरा बाप रिक्शा चलाता है तो वो पीछे हट गया। तू दुनिया को हकीकत की नजरों से क्यों नहीं देखती? अगर बिलफर्ज किसी गरीब की किस्मत खुल जाती है और कोई अमीर उसे ब्याहने आ भी जाता है तो सब हर किसी के नसीब में नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है। फिर उस गरीब की किस्मत खुलती देखकर गरीब लड़कियां भी वैसे ही ख्वाब देखती देखती या तो बूढ़ी हो जाती हैं या फिर रोती धोती आहें भरती गरीब से ब्याही जाती हैं। इसलिए ना बूढ़े बाप को तंग कर, वो तेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहता है। तेरी सोचें उसे गरीबी का मजीद एहसास दिलाकर दुखी करती रहती हैं। अरे बेटियां तो वालिदैन की रजा के लिए कुर्बान हो जाती हैं। तेरी तालीम का क्या फायदा कि तू और दुखी करती रहे हमें। इतनी मुश्किलों से मेहनत करके इसलिए तुझे इतनी तालीम दिलाई कि तू हमें गरीब समझकर जलील करती रहे। अगले हफ्ते सादगी से तेरा निकाह राहील से करना है और राहील की बहन को घर लाना है। बस अब चुप करके निकाह कर और अपना घर बसा। कोई शहजादा नहीं आने वाला, जो मिल रहा है उसी पर खुशी मना। अतिया ने सोचा कि इधर से फरार मुश्किल है, राहील के घर बंदे कम हैं। मैं शादी हो जाने के बावजूद अपने ख्वाब जरूर पूरे करूंगी। ये वालिदैन हमेशा अपना बोझ हल्का करने के लिए अपनी बेटियों को कुर्बान करते आए हैं। मैं कुर्बानी नहीं दूंगी। मैं निकाह भी इसलिए करूंगी कि किसी अमीर आदमी से शादी कर सकूं। दुनिया में अमीर भरे पड़े हैं, क्या मेरे लिए कोई एक भी नहीं है? मैं नेट पर ढूंढकर अपने ख्वाब जरूर पूरे करूंगी। ये मुझ पर जुल्म तो कर रहे हैं, मगर मैं इन्हें किसी अमीर से शादी करके दिखाऊंगी। शादी के बाद मैं तलाक ले लूंगी, फिर मैं खुद मुख्तार हो जाऊंगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। अब मैं अपनी फोटो लगाया करूंगी, टिकटॉक बनाया करूंगी। इधर माँ इसे ऐसे काम नहीं करने देती। मैं राहिल से शादी का तोहफा अच्छा मोबाइल मांगूंगी, फिर उससे ये सारे काम करूंगी। राहिल ने जब सुना कि वो इससे शादी के लिए राजी हो गई है तो उसको यकीन न आया और कंफर्म करने के लिए दौड़ा दौड़ा खाला के घर आया। खाला ने खुशी से उसे बताया कि वो तो मानी हुई थी, बस जरा लाडली है घर भर की, इसीलिए नखरे दिखा रही थी। राहिल ने पूछा, खाला क्या मैं उससे एक बार मिलकर तसल्ली कर सकता हूँ क्या? खाला ने प्यार से इजाजत देते हुए कहा, क्यों नहीं पुत्र, जरूर कर ले तसल्ली। राहिल ने जब उससे बात की तो वो उसे देखकर मक्कारी से मुस्कुरा कर बोली, तुझे यकीन नहीं आ रहा है ना, मगर ये सच है कि मैं तुझसे शादी करने पर राजी हूँ। अच्छा छोड़ सारी बातें, बता मुझे शादी में मुंह दिखाई क्या देगा? क्या कोई तोहफा खरीद कर रखा हुआ है तूने? वो बोला, नहीं, मगर बता तुझे क्या चाहिए? वो तंजिया बोली, पूछ ऐसे रहा है जैसे बहुत अमीर हो और झट से मुझे कोई कीमती तोहफा, गाड़ी, कोठी खरीद कर मेरे नाम कर देगा। तू दे क्या सकता है मुझे? हमेशा ही सस्ते तोहफे दिए हैं मुझे, कंगला कहीं का। राहिल के दिल से हुक सी उठी, मगर वो बर्दाश्त कर गया और खुशदिली से बोला,
तू मुझे बचपन से जानती है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरी आमदनी है? वो बोली, सुन तो अब अपनी आमदनी बहन की मोहब्बत में जहेज पर मत लगा देना, वैसे भी उसने हमारे घर ही आना है। मुझे एक महंगा मोबाइल शादी वाले दिन तोहफे के तौर पर चाहिए। बोल, कर सकता है मेरी फरमाइश पूरी? कि इतनी भी तेरी औकात नहीं है? किन सोचों में गुम है? मैंने कौन सा तुझसे कार कोठी मांग ली है? प्यार के दावे तो बहुत करता है तू। वो सोचों के दायरे से निकल आया और वादा करते हुए बोला, ठीक है, तुझे तेरा तोहफा मिल जाएगा। वो परेशान सा होकर चल पड़ा। खाला ने रोका कि चाय पी कर जाना। वो बोला, खाला अब बारात वाले दिन ही आकर खाऊं पीऊंगा इंशाल्लाह। अतिया की माँ अतिया को डांटते हुए बोली, कोई महंगी फरमाइश तो नहीं कर दी उस गरीब के बच्चे को? परेशान करती रहती है हर वक्त उसे, न जाने शादी के बाद क्या क्या गुल खिलाएगी। माँ उसे कोसते हुए बोली। वो दिल में हंसी और दिल में बोली, अम्मा वैसे तेरे अंदाजे मेरे बारे में 100% दुरुस्त होते हैं। अब देखना वाकई में शादी के बाद क्या क्या गुल खिलाती हूँ, और कोई अमीर आदमी ढूंढ कर रहूंगी और सब पर साबित कर दूंगी कि राहील मेरे काबिल नहीं था। और ये सोचकर ही वो मुतमईन हो गई। राहील घर से निकला तो बहुत परेशान था। जो जमा पूंजी उसने अपनी बहन की शादी पर जहेज में देने के लिए रखी थी, उसे अब वो अतिया की फरमाइश पूरी करने के लिए उसे महंगा मोबाइल लेकर देना पड़ेगा। चलो किसी से कोई उधार ही मिल जाए, मगर किससे? उसके हल्का अहबाब में सब गरीब लोग ही बसते थे। अमीर कहाँ लिफ्ट देते थे? वो सोचने लगा कि बहन को जो थोड़ा बहुत उसने सोचा था देने का, वो तो उसे जरूर देगा। आखिर उसकी एक ही तो बहन है। मगर अतिया का गिफ्ट भी जरूरी है। उसने ना खरीदा तो वो रूठ ना जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से मानी है। वो अपनी वर्कशॉप पर चला गया और अपने 2 हेल्पर लड़के रखे हुए थे, उन्हें बिला वजह ही डांटने लगा। एक बच्चा दूसरे से बोला, लगता है आज उस्ताद जी बहुत परेशान हैं। पहले तो कभी नहीं डांटा उन्होंने हमें, लगता है कोई बड़ा मसला दरपेश है। एक ने पूछा, उस्ताद जी की आपको कोई परेशानी है? वो बोला, हाँ यार, लोग वर्कशॉप खोलते ही नोटों में खेलने लगते हैं। एक मेरी वर्कशॉप है, इतना अरसा गुजरने के बावजूद बस गुजारा ही चल रहा है। दूसरा लड़का बोला, उस्ताद जी मैं जहाँ पहले काम करता था ना, वहीं का उस्ताद हमें गाहक के लिए आने से पहले पटियां पढ़ा देता था कि जो मैं गाहक के सामने कहूँ। तुम लोगों ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलानी है, वरना मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर जबान खोली तो, और तनख्वाह भी काट लूंगा, समझे? हम उसकी धमकियों से डरकर जबान नहीं खोलते थे। वो गाहक को खूब उल्लू बनाकर लूटता था। बाज़ औक़ात मामूली काम के हजारों बिल बना देता था। जो बेचारे इस काम को नहीं जानते थे वो तो अपनी जेबें खाली करवा कर जाते थे। बहुत कम ही ऐसे होते थे जो इस काम को समझते थे, मगर वो अपनी मीठी जबान से उन्हें भी राम कर ही लेता था। हमें जरा सी गलती पर मारता था और खाना भी नहीं देता था कि तनख्वाह किस लिए लेते हो, अपने पैसों से मंगवा कर खाओ। चाय तक नहीं पिलाता था। आप तो हमें पेट भरकर खाना खिलाते हैं और चाय पानी भी पिलाते हैं, और अपने काम में ईमानदार हैं, रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, इसलिए आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है। वो ये बात तो जानता था कि मालिक गाहकों को लूटते हैं। वो खुद भी इन हालात से गुजर चुका था। मालिक खास तौर पर वाकिफकारों को तो और भी उल्लू बनाकर लूटता था, जो उस पर भरोसा करके आते थे। अपनी चर्ब ज़बानी से उन्हें महसूस भी नहीं होने देता था। वो बोला, बच्चों माफ करना, मैं जरा आज बहुत परेशान था, तुम लोगों पर गुस्सा निकाल दिया। वो बोले, नहीं उस्ताद जी, कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं मनाया कि ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो बहुत मारे भी खाई हैं। राहील ने कहा, अच्छे और ईमानदार लोग भी मौजूद हैं दुनिया में जो ऐसे काम नहीं करते, मगर बहुत कम हैं। अब उन लोगों ने इतना भरोसा तोड़ दिया है कि उन पर भी शक रहता है जो ईमानदार होते हैं। मैंने ईमानदार आदमी से ही ये काम सीखा है। दरअसल मुझे कुछ कर्जा चाहिए। तुम लोगों की नज़र में कोई है ऐसा जो लोन दे सके? एक लड़के ने कहा, उस्ताद जी एक पठान है जो सूद पर रकम देता है, वसूली भी वक्त पर लेता है। अगर आप कहें तो मैं उससे आपको मिलवा देता हूँ। राहील ने खुश होकर कहा, अभी मुझे उसके पास ले चलो। राहील ने सूद पर उससे लोन लेकर अतिया के लिए सबसे पहले मोबाइल लिया और सब्र ना हो सका और उसे दिखाने चल पड़ा। वो इस कदर खुश हुई कि उसको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई और साथ समोसे भी मंगवाए और कहा, मैं तो इसे अभी से ही ले लूंगी, मुझसे सब्र नहीं होगा। राहील ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी दे देता हूँ, कितनी खुश हो रही है।
अब तो लगता है मेरे साथ बहुत अच्छी बनकर रहेगी। राहील ने कहा कि इस मोबाइल का जिक्र अभी किसी से मत करना, वरना शायद मेरी बहन को लगे कि मैंने उसको नहीं लेकर दिया। अतिया नफरत भरे लहजे में बोली, उस अनपढ़ ने उसे लेकर क्या करना है भला। राहील के माथे पर शिकन पड़ गए। अतिया ने देखा उसका मूड खराब हो गया है तो झट से बोली, अरे नहीं, मैं उसे शादी के बाद सिखा दूंगी, फिर उसे भी ले देंगे और मैं घर वालों को बता दूंगी कि मेरी कॉलेज की अमीर दोस्त ने शादी का तोहफा दिया है। वो तोहफा देकर आया और उदास हो गया उसके रवैये से। राहील की शादी हो गई और उसकी बहन अतिया के भाई की बीवी बनकर उसके घर चली गई। राहील बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। जिसको वो हर वक्त दुआओं में अल्लाह ताला से मांगता था, आज वो हकीकत बनकर उसके सामने थी। राहील उस पर जान छिड़कता था। शुरू में तो अतिया भी उसके प्यार के आगे हार गई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर फिर अमीर बनने का भूत सवार हो गया। इस दौरान वो एक बेटे की माँ बन गई। उसे बेटे से मोहब्बत होने लगी। फिर उसके ख्वाब जुनून की शक्ल इख्तियार कर गए कि मेरा बेटा आला तालीम हासिल करे। माँ ने मशवरा दिया कि तू पढ़ी लिखी है, कोई नौकरी कर ले ताकि राहील भी जरा सुखी हो जाए बेचारा। कितनी मेहनत करता है, मुंह अंधेरे निकलता है और रात को वापस आता है, कहता है कर्ज उतार रहा हूँ शादी का। अतिया ने माँ को रुखाई से जवाब दिया, मैंने तालीम इसलिए हासिल नहीं की कि नौकरी करके अपनी जान खपाती रहूं। मैंने तालीम इसलिए हासिल की है कि किसी अमीर की बीवी बनकर उससे इंग्लिश में बातचीत कर सकूं। माँ ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, बेशरम, शर्म कर, अब तू एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है, अब ये अमीरी के ख्वाब देखने छोड़ दे। वो गरूर से बोली, अब तो बच्चे के लिए और भी अमीर होना जरूरी हो गया है ताकि उसे अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं। वो बच्चे को दादी के पास ना जाने देती, उसे इंग्लिश में बातचीत करती। दादी तरसती रहती, मगर वो कहती कि वो उसकी तरबियत किसी गरीब के हाथों में नहीं होने देगी, वो जो भी सदा गुर्बत पर इक्तफा करने वाला बने। राहील सारा दिन मेहनत करके पठान का कर्जा उतार रहा था, जिसने इसे सूद में जकड़ रखा था। घर आता तो माँ रोती धोती कि कोई काम न काज ना करती है, ना ही बच्चे को पास आने देती है। सारा दिन मोबाइल पर टिकटॉक बनाती रहती है या फोन पर किसी से गप्पे लगाती रहती है। मुझे तो अब उस पर शुबा होने लगा है। राहील अगर उसे किसी बात से रोकता टोकता तो उसे कंगला और गुर्बत का मारा होने के ताने देती। वो तो राहील को भी बच्चे के करीब न आने देखती कि उसे अपनी तरह अनपढ़ गंवार बना दोगे। दोनों माँ बेटे ने उसके झगड़े के डर से बच्चे को बुलाना ही छोड़ दिया। वो भी माँ के डर से उन दोनों के पास न जाता। अतिया ने बहुत टिकटॉक बनाई, अपनी बहुत सी फोटोज लगाई, मगर कोई अमीर आदमी अभी तक न फंसा। बच्चा 4 साल का हो गया। उसे गुस्सा आने लगा कि कब वो इस दोज़ख से निकल सकेगी। एक दिन एक अमीर लड़के ने उसे ऑफर दे दी कि वो बहुत अमीर आदमी है और इस पूरे बड़े से घर में अकेला रहता है। आहिस्ता आहिस्ता वो उससे ताल्लुकात बढ़ाने लगा। वो भी उसे अपनी गुर्बत और मजलूमियत के किस्से सुनाने लगी। दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। सास ने बहन को शिकायत लगाई कि बेटी किसी के चक्कर में पड़ी हुई है। मैंने अभी तक राहील को नहीं बताया, इसे समझाएं कि अपना घर ना खराब करे। माँ ने आकर समझाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस ना हुई। वो मैके भी न जाती थी कि माँ उसे समझाने बैठ जाती थी। उस लड़के से बाहर भी मिलने गई। उसका बड़ा सा घर, गाड़ियां वगैरह देखकर दंग रह गई। उसने इसे सारे घर में घुमाया और कहा कि शौहर से तलाक लेकर मेरे इस महल में आ जाओ, मैं यहाँ तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। अतिया ने कहा, मेरे बेटे को भी कबूल करोगे क्या? वो बोला, क्यों नहीं, मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। वो इसे वरगलाते हुए बोला, जल्द से जल्द उसे तलाक लेकर आ जाओ, अब मुझसे और जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी। अतिया ने रोज रोज राहील से तलाक का मुतालबा कर दिया। एक दिन सास सुबह उठी तो वो अपने और बच्चे के सामान समेत गायब थी। सास ने फौरन बेटे को फोन किया कि जल्दी आओ। वो शहर से बाहर दोनों के लिए सामान लेने गया हुआ था। वो भागा हुआ वापस आ गया। मैके वाले भी आ गए। उसका फोन बंद जा रहा था। फिर उसका फोन खुल गया और उसने राहील को फोन किया। राहील ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। अतिया ने कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे होगे और मेरे मैके वालों को भी बुला लिया होगा। माँ ने गुस्से से कहा, कमबख्त कहाँ है तू? हम कब से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो रहे हैं। वो बोली, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने एक कंगले के साथ मेरी किस्मत फोड़कर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाही, मगर अब मैं मजीद अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, बल्कि एक अमीर आदमी ढूंढ लिया है। आप लोग तो मेरे लिए अमीर आदमी का रिश्ता ना तलाश कर सके।
मगर मैंने तलाश कर लिया है। वो अजीम इंसान मेरे बच्चे समेत मुझे कबूल करने को तैयार है। मैं अब मजीद गुर्बत में जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। मुझे राहील से तलाक दिलवाकर मुझे आज़ादी दिलवा दे ताकि मेरे अच्छे दिन शुरू हों। राहील ने सबको मुखातिब किया और कहा, आप सब गवाह रहना, मैंने उसे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। और फिर भराई हुई आवाज में बोला, एड्रेस व्हाट्सएप करो, मैं तलाक भिजवा दूंगा। सब घरवाले रोने लगे और उसे रोकते रहे, मगर वो जल्दी से बोल गया। माँ के करीब आया जो बहुत रो रही थी। माँ से बोला, जो औरत आते ही मेरी माँ की आंखों से आंसू खुश्क न होने दे, मैं अब मजीद उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अतिया की माँ ने राहील को गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटा हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, वो बदबख्त ही तेरे काबिल न थी। राहील खुद भी रो रहा था। वो अपनी शॉप पर चला गया। आगे पठान गुस्से से भरा हुआ अपने पैसे लेने आया हुआ था कि 3 दिन लेट हो गए हैं पैसे। राहील परेशान सा होकर बैठ गया। पठान गुस्सा भूलकर हैरान होकर उसे देखने लगा। इतने में राहील को माँ का फोन आया कि वो ठीक है क्या। वो बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जरा थोड़ी देर तन्हा रहना चाहता हूँ। दोनों लड़के जो इसके पास काम करते थे करीब आकर बोले, उस्ताद क्या बात है, इससे कभी पहले आपको इतना परेशान नहीं देखा हमने। राहील ने पठान को रोते हुए बताया कि जिस बीवी को खुश करने के लिए कर्जा लेकर उसे महंगा मोबाइल लेकर दिया था, आज वो उसी मोबाइल की बुनियाद पर किसी से दोस्ती करके भाग गई है और मैंने उसे तलाक दे दी है। वो रोते हुए बोला, क्या फायदा हुआ मुझे, उसकी वजह से दिन रात मेहनत की कि मोबाइल का कर्जा उतर सके, तुम्हारे हाथों जलील होता, अब भी तुम मुझे बेइज्जत करने ही आए हो। पठान ने अपना सर पकड़ लिया, फिर वो इसे जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले गया। बीवी से बोला, मेहमान आया है, चाय पानी का बंदोबस्त करो। राहील को पानी पिलाया और कहा, देखो हमने पूरी जिंदगी में तुम जैसा अच्छा ईमानदार इंसान नहीं देखा। तुमने बीवी को तलाक दे दिया, किस्सा खत्म। अब हम तुमसे दरख्वास्त करता है हाथ जोड़कर, हमारा बहन से निकाह पढ़वा लो, हम तुमको सब कर्जा माफ कर देगा। देखो ज्यादा ना सोचो, हमारा बहन घर का सारा काम करता है, वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेगा। अपनी माँ की खिदमत के लिए मान जाओ, ज्यादा ना सोचो। इस वक्त तुम्हारी माँ को भी किसी औरत की जरूरत है। हमारा बहन अगर तुम्हारी माँ की खिदमत ना करे तो बताना, हम उसको खुद गोली मार देगा। मोहल्ले का मौलवी हमारा दोस्त है, वो अभी गवाह लाकर निकाह पढ़वा देगा। हमने उससे फोन पर बात किया है, अगर तुम मान जाता है तो हम भी तुम्हारी तरह नेक बनेगा और सूद का कारोबार छोड़ देगा। देखो ज्यादा मत सोचो, बस बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह ताला का नाम लेकर राजी हो जा। पठान ने मौलवी साहब को भी फोन कर दिया, वो भी आ गए। जब राहील का किस्सा सुना तो बोले, तुम्हें फौरन निकाह कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी माँ कम से कम पोते को भुला सके और तुम्हारे और बच्चों से दिल बहला सके। राहील खौफजदा लहजे में बोला, मगर मैं अपनी माँ की इजाजत के बगैर कैसे निकाह कर सकता हूँ। मौलवी साहब बोले, वैसे उस पठान की फैमिली मेरी फैमिली के साथ आती जाती है, मेरी फैमिली से इनके गहरे मरासिम हैं, तुम तसल्ली रखो, सब अच्छा होगा। आखिर पठान और मौलवी साहब ने निकाह पढ़वा कर ही दम लिया। पठानी को मौलवी साहब की फैमिली ने तैयार वगैरह भी कर दिया। घर से राहील को माँ के काफी फोन्स कॉलें आती रहीं। आखिर पठानी को पठान ने अपनी बाइक की चाबी देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से तुम दोनों को शादी का गिफ्ट है। राहील ने एहतजाज किया मगर उसकी ना चली। पठानी हिचकियों से रोती हुई सबसे मिलकर बैठ गई। राहील के घर में अभी तक अतिया के घर वाले भी बैठे हुए थे। सब साथ पठानी को देखकर हैरान रह गए। अतिया की माँ ने रोते हुए उसे कहा, तू बड़ी खुश नसीब है कि राहील जैसा तुझे इंसान मिला। हमारी बेटी तो बदबख्त थी जो खुश नसीबी को ठोकर मारकर चल पड़ी। पठानी ने आते ही सबके दिल जीत लिए। वो थी भी बहुत खूबसूरत, सब उससे खुश हो गए। अल्लाह ताला ने 2 जुड़वा बच्चे भी दिए, एक बेटा एक बेटी। एक बच्चे को दादी पालने लगी। राहील अब अपनी जिंदगी में पुरसकून और मुतमईन था। अगरचा आमदन इतनी न थी मगर फिर भी खुश थे। बीवी अपने आप को हर वक्त खुश किस्मत कहती, वो भी खुश था। अतिया को अपने किए की सजा मिल गई। राहील ने फोन पर उसे फौरन तलाक देकर हैरान कर दिया। उसे खुश फहमी थी कि वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा, मगर उसने मिनट न लगाया। घर वालों ने उससे हमेशा का नाता तोड़ लिया। इद्दत तक वो इसे अपने गांव ले गया कि इद्दत उधर गुजारो, फिर निकाह के बाद तुम्हें शहर लेकर जाऊंगा। उस आदमी की माँ उस पर जुल्म करती, उसके बच्चे को मारती, सारे घर के काम करवाती।
इद्दत के बाद वो निकाह करने आ गया। अतिया ने शुक्र अदा किया कि गांव से उसकी जान छूट जाएगी। निकाह करके वो उसे कोठी लाया। उधर आकर उसे पता चला कि वो तो उधर मुलाजिम था। कोठी वाले बाहर रहते थे। जब पाकिस्तान आते तब तक तो वो कोठी की चौकीदारी करता। उसने कोठी और गाड़ियों की तस्वीरें लगाकर अतिया को फंसा लिया था। अतिया को वो रोज मारता और ताने देता कि तू इसी काबिल है जो अपने शौहर को धोखा देकर किसी पराये मर्द के साथ आ सकती है, वो मुझे भी छोड़कर किसी के साथ जा सकती है। उसके बच्चे को मुंह पर चांटे मारता। अब अतिया बुरी तरह पछताने लगी। माँ फोन पर उसे रोता देखकर पिघल गई। माँ ने बताया कि राहील ने निकाह कर लिया है और 2 बच्चों का बाप है। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, उसकी बहुत कदर करती है। राहील उससे बहुत प्यार करता है और दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। दादी भी अपने पोते पोती में मगन और खुश रहती है। कोठी वाले वापस आ गए और उसका फ्रॉड पकड़कर उसे नौकरी से निकाल दिया। वो जाते हुए अतिया को तलाक दे गया कि तुमसे निकाह आर्जी तौर पर किया था। वो रोने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। उस कोठी के बूढ़े मालिक ने उसे शादी की पेशकश कर दी। अतिया ने मजबूरन कबूल कर ली कि अब रहने का कोई ठिकाना न था। बूढ़ा जवान बीवी पाकर खुश था। अब अतिया दौलत में खेलती थी। बच्चा उस वक्त पास ला सकती जब बूढ़ा मौजूद ना होता, क्योंकि उसने उसे इसी शर्त पर रखा था कि मेरी मौजूदगी में उसे पास नहीं बुलाएगी। अतिया दादी के पास नहीं जाने देती थी। अब अपना बेटा पास अपनी मर्जी से नहीं रख सकती थी। अब दौलत उसे सुकून न देती। दिन रात वो पछताती और अपने किए की माफी मांगती। वो तो उसका खुशियों भरा पुरसकून दौर था। उसने खुद जन्नत के बदले दोज़ख खरीद ली। वो राहील को और सबको बेइज्जत करती थी, अब खुद होती। बूढ़े के बच्चे उसे माँ के तौर पर कबूल ना कर सके। उनकी माँ मर चुकी थी। बात बात पर उसे गुर्बत के ताने मिलते कि उसने ये ऐशो इशरत ख्वाब में भी न देखा होगा। बूढ़ा दौलत देता, गिफ्ट देता, मगर साथ तंज करता कि ये उसकी औकात से बढ़कर हैं। कदम कदम पर जिल्लत अब उसका मुकद्दर थी। जिसे बोया वैसे ही काटा। अब वो सोचती थी कि अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो दिन रात तौबा करती। मैके वालों को माँ ने मनाकर राजी कर लिया था। अब वो ड्राइवर के साथ बड़ी सी गाड़ी में आती। बूढ़ा शौहर और बच्चे कभी ना आते कि वो उनके मेयार की जगह नहीं है। अतिया ने माँ से कहा कि वो मेरे बच्चे को पाल ले। इधर हर वक्त सब उसे जलील करते हैं। पठानी ने उसे कबूल कर लिया कि वो उसके बच्चों का बड़ा भाई है। बाप और दादी बहुत खुश हुए कि उनको उनका बिछड़ा हुआ बच्चा मिल गया, जिसके लिए वो तरसे हुए थे। बच्चा भी जल्द बाप, दादी और पठानी और उसके बच्चों से मानूस हो गया था। पठानी को मामा कहता। उस घर से उसका स्कूल भी नजदीक पड़ता था। वो अपने बाप के साथ बाइक पर बहुत खुशी से स्कूल जाता। अतिया अब मुतमईन हो गई थी। वो पठानी का बहुत शुक्रिया अदा करती। वो कहती, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरे बच्चों को बड़ा भाई दे दिया। भाई बहन दुनिया में बहुत बड़ी नेमत हैं। पठान अपनी बहन को काफी जहेज देना चाहता था, मगर राहील ने तो बाइक के पैसे भी थोड़े थोड़े करके दे दिए। पठानी ने भाई से कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। अच्छा शौहर, माँ जैसी सास और प्यारे से बच्चे, 2 वक्त की इज्जत की रोटी, ससुराल वालों से इज्जत और प्यार, मुझे भला और क्या चाहिए। अतिया के घर वाले भी उसे बहुत अहमियत देते, क्योंकि वो उनको भी अपने घर में तपाक से मिलती और खूब आओ भगत करती। नंद को मान देती। अतिया सोचती अगर वो अकल से काम लेती तो आज सारी खुशियां उसका नसीब बनती। उसके अपने वालदैन और बहन भाई पठानी को अहमियत और प्यार करते हैं, जबकि वो धुतकारी हुई औरत है। कोई उससे राजी होने के बावजूद भी खुशी से नहीं मिलता। माँ भी जब मिलती है पठानी की ही तारीफें करती रहती है। अतिया ने तौबा इस्तग़फ़ार को अपना विर्द बना लिया। रो रो कर अपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती। उसका अपना बेटा भी अब उससे ज्यादा पठानी से मानूस था। बूढ़ा शौहर उस पर अब शक भी करने लगा था, क्योंकि उसका दामाद उसे घूर कर देख रहा था। इस बात पर बूढ़े शौहर ने उसे बहुत मारा, जी भरकर ताने दिए। वो सोचने लगी कि क्या वो अपने गुनाहों को धो सकेगी, क्या कभी शराफत और इज्जत की जिंदगी गुजार सकेगी। वो मार खाकर अकेली रोती ही रहती, सिसकती रहती। माँ ही दुनिया में वाहिद एक हमदर्द सहारा थी, मगर वो माँ को अपने दुख बताकर परेशान करना नहीं चाहती थी, क्योंकि बचपन से अब तक वो उन्हें कोई सुकून और खुशी नहीं दे पाई थी। वो रो रो कर अपने रब से फरियादें करती रही। इतना बड़ा घर था, वो घर के मुलाजमों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगी। बूढ़ा उसको रकम खुली देता था
और शॉपिंग भी खूब करवाता था और पैसे का हिसाब भी नहीं मांगता था। वो चाहती थी कि अपने घर वालों की हेल्प करे और राहील की भी मदद करे, मगर राहील और उसके अपने घर वाले ने हत्ता कि वो जो केक फ्रूट्स वगैरह लाई थी वो भी उसे वापस कर दिए। वो रोती हुई वो चीजें रास्ते में लोगों को दे गई। वो जानती थी कि उसके घर वाले बहुत गैरतमंद लोग हैं। उसने शर्मिंदगी से वहां जाना ही छोड़ दिया। अपने बेटे से भी ना मिलती। तसल्ली थी कि वो अब महफूज हाथों में है। राहील की सेहत भी अच्छी हो गई थी। अब वो खुलकर हंसता था, वरना वो तो हंसना ही भूल गया था। बहुत हैंडसम हो गया था। उसे तो अंदाजा ही न था कि राहील इतना हैंडसम है। पठानी भी बहुत खूबसूरत थी। उसे ये सुनकर काफी शौक लगा कि वो एमए तक पढ़ी हुई थी और वो भी यूनिवर्सिटी से, मगर फिर भी उसने अपने कम पढ़े लिखे शौहर को दिल से कबूल कर लिया और इज्जत भी दी। वो सोचने लगी, बाहरी किस्मत, राहील को पढ़ी लिखी और खूबसूरत बीवी, बच्चे, सब कुछ मिल गया। इसे क्या मिला, बल्कि अपना बच्चा भी छोड़ना पड़ा। उसने अपने पैसों से गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। वो इसे दुआएं देते तो वो बस उन्हें इतना ही कहती कि दुआ करो, मुझे सुकून मिल जाए। बूढ़ा शौहर उसे अपने साथ घुमाने ले गया, मगर पूरी दुनिया घूम कर भी उसे जरा मजा न आया। कभी वो इन चीजों के ख्वाब देखा करती थी। शौहर ने शरई तौर पर सबको हिस्से दिए और वही बड़ा घर इसके हिस्से में आया। इसके बच्चों ने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी काफी दौलतमंद थे। उन्हें पैसे की परवाह न थी। कुछ दिनों बाद अतिया का शौहर दिल के अटैक से मर गया। उसके बच्चे पाकिस्तान आए हुए थे। वो उसके कुल के बाद सब वापस चले गए। अब वो अतिया के अच्छे रवैये से पिघलने लगे थे। अतिया से बोले, आप हमारी माँ की नेमुल बदल हैं। हम कभी कभी पाकिस्तान बाप की कब्र पर आया करेंगे और आपसे हमेशा ताल्लुक रखेंगे, आपकी कफालत करेंगे। वो रोने लगी, जज्बात से भरे अंदाज में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग कभी फुर्सत में मिलने आ जाया करना। अतिया के मैके वाले और राहील वगैरह सब आए और जनाजे के बाद जाने लगे तो बूढ़े के बच्चों ने उन्हें बहुत इज्जत दी और जबरदस्ती खाना खिलाया। उन्होंने बताया कि उनके बाप ने मरने से पहले उन्हें वसीयत की थी कि अतिया का हमेशा ख्याल रखना। मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैंने उसे कई बार आजमाया, मगर हर बार वो खरी उतरी। मैंने शक किया, सख्ती की, मगर वो फिर भी मेरी खिदमत में लगी रही, कभी गिला तक न किया। अतिया के दिल में सुकून उतर आया कि घर वाले अब उसे फख्र से देख रहे थे। अतिया ने सोचा, सच है, सच्चे दिल से तौबा करने से अल्लाह ताला जरूर माफ फरमा देते हैं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।